السلام علیکم ناظرین، خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں عبدالمغنی صدیقی۔ آگے بڑھنے سے پہلے سرخیوں پر ڈالتے ہیں ایک نظر۔ شہریت قانون، این پی آر اور این آر سی کے خلاف جی ایچ ایم سی جنرل باڈی اجلاس میں قرارداد منظور، بیرسٹر اسد الدین اویسی کی تحریک کا اثر۔ جی ایچ ایم سی بجٹ 6,977 کروڑ روپے منظور، 1,593 کروڑ ڈبل بیڈ روم کے لیے مختص۔ انفورسمنٹ چالانات پر مجلس کی برہمی، صفائی، نالوں کی توسیع اور کارپوریٹرز کو فنڈ کی اجرائی کا کیا مطالبہ۔ ملک کی معیشت بستر مرگ پر، علاج کی کوئی فکر نہیں، مودی میں انسانی ہمدردی کا فقدان۔ ریاست کے نقصانات پر کے سی آر خاموش کیوں، چدمبرم کا سوال۔ اور فرضی دستاویزات کے ذریعے بینکس کو چونا لگانے والی 6 رکنی ٹولی گرفتار۔ سرخیاں آپ نے دیکھی، اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ شہریت ترمیمی قانون اور این پی آر این آر سی کے خلاف جہاں ملک بھر میں احتجاج جاری ہے، وہیں مختلف ریاستوں میں سیاہ قانون کی مخالفت کرتے ہوئے اسمبلی میں قراردادیں منظور کی گئی ہیں۔ لیکن عظیم تر بلدیہ حیدرآباد ملک کی پہلی کارپوریشن ہوگی جس کے جنرل باڈی اجلاس میں شہریت ترمیمی قانون، این آر سی اور این پی آر کے خلاف قرارداد پیش کرتے ہوئے ایک مثال قائم کی گئی ہے۔ ہفتے کے دن جی ایچ ایم سی کے جنرل باڈی اجلاس میں مجلس اتحاد المسلمین کے پرزور مطالبے و تحریک پر ٹی آر ایس ارکان کی تائید اور بی جے پی کی مخالفت کے بعد میئر رام موہن نے سیاہ قانون کے خلاف قرارداد کو منظوری دے دی۔ اجلاس میں مجلس کے کارپوریٹر محمد ماجد حسین نے کہا کہ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی نے پارلیمنٹ میں شہریت کا سیاہ بل پھاڑ کر جو تحریک شروع کی وہ اب ملک کے ہر کونے میں جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر سیاہ قانون کے خلاف قرارداد منظور کی گئی تو عظیم تر بلدیہ حیدرآباد ملک کی پہلی کارپوریشن ہوگی اور میئر کا نام سنہرے لفظوں میں لکھا جائے گا۔ ہندوستان کی یہ پہلی بلدیہ ہوگی جو سی اے، این آر سی اور این پی آر کے خلاف ایک ریزولوشن لیتے ہوئے آگے بڑھائے گی۔ سر، یہ بڑا قدم ہوگا کیونکہ جو لوگ آج روڈوں پہ نکلے ہوئے اس کالے قانون کو لے کر اور احتجاج کر رہے ہیں، بالخصوص وہ ماں اور بہنیں جو رات بھر کئی دنوں سے احتجاج میں لگی ہوئی ہیں، جو نوجوان اس کالا قانون کے خلاف روڈوں پہ نکل کے احتجاج کر رہے ہیں، جو کئی بزرگ اس کالے قانون کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کالا قانون ہم پہ مسلط نہ کیا جائے، ان کو ایک بہت بڑی حوصلہ افزائی ہوگی۔ کیونکہ یہ جب کالا قانون ہندوستان کی پارلیمنٹ میں لایا گیا، وہ تلنگانہ سے اس کی مخالفت شروع ہوئی۔ بالخصوص بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب نے اس ایوان میں بے باک طور سے مہاتما گاندھی فادر آف دی نیشن کا نام لیتے ہوئے اس کالے قانون کو پھاڑتے ہوئے ان وقت کے فرعونوں کے منہ پہ مارا۔ اور ہم تہہ دل سے ٹی آر ایس کے بھی تمام ایم پیز کا شکر گزار کرتے ہیں مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے، جنہوں نے وہاں پر اس کالے قانون کے خلاف ووٹ ڈالتے ہوئے اپنا احتجاج درج کیا۔ اور خاص طور سے یہ اگر آج ہم ایک ریزولوشن لیں گے تو ہم ایک پیغام دیں گے تمام ہندوستان کو کہ جو روڈ پہ نکلے ہوئے جو احتجاج کر رہے ہیں ان کو ایک حوصلہ افزائی ہوگی کہ سیکولرزم ہندوستان میں زندہ ہے اور سیکولر سوچ رکھنے والی قیادت ہندوستان میں نڈر طریقے سے ان فاشسٹ حکومتوں کا مقابلہ کرے گی، اور جو سیکولرزم اور ہندوستان کی یکجہتی کو توڑنے کی کوشش کرے گا اس کے خلاف ہمیشہ ٹھہرتے ہوئے اس کو ناکامیاب کرے گی۔ آپ سے ادباً گزارش ہے صاحب، این پی آر شاید اپریل میں لاگو کرنے کا ایک منصوبہ بنایا جا رہا ہے، اور ہمیں اس کے خلاف ایک بے باک طور سے ٹھہرتے ہوئے آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ ریزولوشن لیجئے اور ریکویسٹ کریے سی ایم صاحب، آنریبل سی ایم صاحب تلنگانہ کو کہ اس کے خلاف وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ سیشن بلائیں گے اور اس کے خلاف وہ بھی ایک ریزولوشن لیں گے سی اے، این پی آر اور این آر سی کے خلاف۔ اور مجلس اتحاد المسلمین یہاں سے ان تمام کو بھی پیغام دے رہی ہے کہ بے باک طور سے ہم جہاں پہ بھی ہماری نمائندگی رہے گی، جہاں ہم بے باک طور سے ایسی بات کرتے ہوئے، ایسی مطالبہ کرتے ہوئے ہندوستان کی جمہوریت اور ایک جہتی کو ہر جگہ ہم
धर भरम होने से रोकेंगे और निडर तरीके से वहां पे ठहरते हुए उन फाशिस्ट हुकूमतों का और फाशिस्ट लोगों का मुकाबला करेंगे। टीआरएस के रुकनी कौंसल एमएस प्रभाकर ने भी बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी का हवाला देते हुए कहा कि इस स्याह कानून की टीआरएस हुकूमत भी खिलाफ है और पार्लियामेंट में टीआरएस अरकान भी इसकी खुलकर मुखालिफत कर रही है। इन्होंने भी करारदाद पेश करने की तायद की। హైదరాబాద్ నుంచి ముఖ్యంగా బాబా ఫసీయుద్దీన్ గారు చెప్పినట్టు అసద్ గారు మన పార్లమెంట్ సభ్యులు, వారు కూడా వారి వాదన వినిపించినారు పార్లమెంట్లో. చాలా చక్కగా వారి ప్రసంగం, దానివల్ల వచ్చే రిపల్షన్స్ ఏమున్నాయో దానివల్ల వచ్చే విధంగా కేవలం ఒక వర్గానికి ఏ విధంగా దీనివల్ల టార్గెట్ చేస్తున్నారనే విషయం కూడా వాళ్ళు ఖచ్చితంగా చెప్పడం జరిగింది. నేను ఈ సందర్భంగా వారికి కూడా అభినందిస్తూ ఉన్నాను. మరి ఖచ్చితంగా ఈరోజు ఒక మంచి రెజల్యూషన్ తీసుకొని ఒక మంచి సందేహం ఈరోజు ఒక మంచి సంకేతాలు ఈరోజు మనం చూపిస్తూ ఉన్నాం. ఎందుకంటే రాబోయే అసెంబ్లీ ఎలక్షన్లో, ఎందుకంటే ముఖ్యమంత్రి గారు పదే చెప్తా ఉన్నారు, సిఏఏ గురించి మాత్రం మా ప్రభుత్వం ఖచ్చితంగా ఒక నిర్ణయం తీసుకుంది, రాబోయే అసెంబ్లీ దాంట్లో సమావేశంలో దీని రెజల్యూషన్ కూడా తీసుకొని మేము అక్కడ పంపిస్తామని కూడా చెప్పడం జరిగింది. डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन ने स्याह कानून के खिलाफ इजलास में करारदाद पेश की। हिंदुस्तान के आइन के खिलाफ, हिंदुस्तान के जमहूरियत के खिलाफ जो कानून लाया गया है सीए एनआरसी, इसकी हम पूरे हम खिलाफ है, इसकी पूरे हम अपोज कर रहे हैं कहकर हिंदुस्तान का हर कोई हिंदुस्तानी आवाज लगा के कह रहा है कि हम इस ऐसे हिंदुस्तान के आइन के जो खिलाफ जो कानून लाया गया है, इस काले कानून के हम खिलाफ है कहकर हर कोई हिंदुस्तानी कह रहा है। दिल्ली में जब ये काला कानून लाया गया तो उसके खिलाफ में टीआरएस के एमपीज ने वोट देकर इसके काले कानून का एहतजाज किया और साथ ही साथ में असदुद्दीन ओवैसी साहब ने एक चिराग से और एक चिराग को जैसा रोशनी दिया जाता है, हैदराबाद के एमपी असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी जब ये काला कानून लाया गया तो उन्होंने जब एहतजाज कर उस काले कानून को कागजों को पाड़ कर कहा कि हिंदुस्तान के आइन के खिलाफ, हिंदुस्तान के जमहूरियत के खिलाफ जो कोई भी कानून लाया जाएगा, हर कोई हैदराबादी, हर कोई तेलंगाना का वो कोई भी आदमी रहेगा तेलंगाना का, जो क्योंकि तेलंगाना आवाम एक इनकलाबी सोच सकती है, वो तेलंगाना का एक आम आदमी रहो या एमपी रहो या एमएलए रहो, तो असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी उसके खिलाफ में आवाज उठाई। तो उसी साथ में वहां जो पार्लियामेंट से जो आवाज शुरू हुई पूरे हिंदुस्तान में आज फैला, हिंदुस्तान में पहल कर हिंदुस्तान के दिल्ली से शुरू कर हैदराबाद, जम्मू से लेकर कश्मीर तक आज हर कोई कह रहे हैं सीएए एनआरसी के हम खिलाफ है। ऐसे कानून से हिंदुस्तान की जमहूरियत को खतरा है, हिंदुस्तान के माइनॉरिटीज को खतरा है, हिंदुस्तान की जो जमहूरियत, जो हिंदुस्तान में जो चैन और अमन जो कायम है उसको खतरा है कहकर पूरे हिंदुस्तान में सिख, मुस्लिम, हिंदू हर कोई अपोज कर रहे हैं। क्योंकि मेयर साहब से मेरी गुजारिश है, आप भी एक मुजाहिद थे तेलंगाना की तारीख में, हम भी एक मुजाहिद थे, तो आपका अपना फर्ज बनता है को हिंदुस्तान के दूसरे कारपोरेशन को हम पूरे एक मिसाल बने जो हिंदुस्तान के जमहूरियत के खिलाफ, हिंदुस्तान के आइन के खिलाफ जो कोई भी कानून आए हम जरूर उसकी मजम्मत करें, उसकी जरूर हम खिलाफत करेंगे, अब जरूर उसकी हम अपोज करेंगे कहकर हम यहां पर आवाज उठाएं। तो बिलखुसूस आपसे वादमन गुजारिश है, सीएम केसीआर साहब जो सेकुलर कायद हिंदुस्तान का मुस्तकबिल ऐसी कायदत को चाह रहा है, और उसे सीएम केसीआर साहब का और म्युनिसिपल आईटी मिनिस्टर केटीआर साहब का और अपने टीआरएस के एमपीज का और असदुद्दीन ओवैसी साहब का, हम सबका यहां से हम एक रेजोल्यूशन पास कर उनका शुक्रिया अदा करें और ऐसे कानून का पूरी हम पूरी इसका खिलाफत कर यहां पे उनका एहतजाज का हम यहां से आवाज उठा कर एक रेजोल्यूशन लेने की आपसे बादमन में गुजारिश करता हूं। जय हिंद, जय तेलंगाना। मेयर राम मोहन ने मुत्तफिका तौर पर स्याह कानून के खिलाफ करारदाद को मंजूरी दे दी। గౌరవ డిప్యూటీ మేయర్ గారు, అదేవిధంగా గౌరవ మాజీ హుస్సేన్ గారు, స్వర్ణలత గారు, జగదీష్ గారు, ప్రభాకర్ గారు, ఇంతకుముందే జాఫ్రీ గారు, గౌరవ మరి ఎమ్మెల్యేలు, ఎక్స్ ఆఫీసర్ మెంబర్స్ అందరూ కూడా భారతదేశంలో రాజ్యాంగానికి విరుద్ధంగా ఉంది మరి సిఏ కానీ ఎన్ఆర్సీ కానీ, దీన్ని వీఆర్ సెక్యులర్ పార్టీ, సెక్యులర్ స్టేట్ తెలంగాణ అని చెప్పి మొట్టమొదటగా మరి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కానీ మరి అదేవిధంగా ఎంఐఎం పార్లమెంట్ సభ్యుడు అసదుద్దీన్ ఓవైసీ గారు కానీ మరి దీన్ని తెలంగాణ స్టేట్ నుంచి మేము దాన్ని వ్యతిరేకిస్తున్నామని చెప్పి సవివరంగా భారతదేశానికి ఒక సందేశం ఇవ్వడం జరిగింది పార్లమెంట్ సాక్షిగా కానీ మరి ఎంపీ గారు కానీ అదేవిధంగా ఇక్కడ గౌరవ మన ముఖ్యమంత్రి గారు కానీ మరి దాన్ని సెక్యులరిజాన్ని మనం ఇక్కడ అమలు చేస్తున్న సెక్యులరిజాన్ని మాత్రమే ఇక్కడ ప్రమోట్ చేస్తుంటాం కాబట్టి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి నిర్ణయానికి మనం అందరం కూడా
సపోర్ట్ చేస్తూ ఎన్ఆర్సీ కానీ కామన్ సివిల్ కోడ్ కానీ సిఏ కానీ దాన్ని వ్యతిరేకిస్తానికి మనం కూడా జిహెచ్ఎంసీ నుంచి తీర్మానాన్ని అందరూ కూడా ఆమోదించవలసిందిగా విజ్ఞప్తి. अजीमतर बल्दिया हैदराबाद कॉरपोरेशन का साल 2020-21 का 6,973 करोड़ 64 लाख रुपए के बजट को जनरल बॉडी इजलास में मंजूरी दी गई है। पेश किए गए बजट को दो हिस्सों में तकसीम किया गया। बल्दिया का असल बजट 5,380 करोड़ रुपए होगा, जबकि दीगर दो मरबूत कॉरपोरेशंस के कामों के लिए 1,593 करोड़ 64 लाख रुपए मुख्तस किए गए हैं। बजट में बताया गया है कि डबल बेडरूम मकानात के लिए 1,593 करोड़ 64 लाख रुपए मुख्तस किए गए। बल्दिया को 14वें फाइनेंस कमीशन के तहत 350 करोड़ रुपए हासिल होंगे। SRDP प्रोजेक्ट्स के लिए कर्ज और बॉन्ड्स की शक्ल में रकम हासिल की जाएगी। अब तक इन कामों के लिए बॉन्ड्स के जरिए 495 करोड़ रुपए हासिल किए गए। बल्दिया की सबसे ज्यादा आमदनी जायदाद टैक्स से 1,803 करोड़ रुपए होगी। बजट पर मुबाहिस के दौरान मजलिस के कॉरपोरेटर मोहम्मद माजिद हुसैन और मलकाजगिरी के रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने कहा कि बजट तो पेश किया जा रहा है, लेकिन गुज़िश्ता 4 साल से कॉरपोरेटर्स को 1 रुपया भी जारी नहीं किया गया। बजट की सिर्फ कागजी कार्रवाई हो रही है। इस मौके पर रेवंत रेड्डी ने कहा कि शहर के हेरिटेज के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बजट काफी कम है, जबकि बल्दिया दफ्तर के इंतजामात का बजट ज्यादा है। इनके अलावा दीगर अरकान ने भी मुख्तलिफ मौज़ूआत को ज़ेर बहस लाया। इसके बाद मेयर राम मोहन ने बजट को मंजूरी दे दी। इससे पहले जनरल बॉडी इजलास के आगाज पर दबीरपुरा डिवीजन से नौ मुंतखब मजलिस के कॉरपोरेटर मीर बासित अली को हलफ दिलाया गया। दूसरी तरफ अजीमतर बल्दिया हैदराबाद के जनरल बॉडी इजलास में इन्फोर्समेंट शोबे के चालानात का मसला भी छाया रहा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान मुक़न्नना सैयद अहमद पाशा कादरी, जाफर हुसैन मेराज और अमीनुल हसन जाफरी ने इन्फोर्समेंट शोबे की तरफ से बेतहाशा चालानात पर तवज्जो दिलाई। अरकान असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी और जाफर हुसैन मेराज ने कहा कि साइन बोर्ड, होर्डिंग्स और फिर तामीराती अशिया के मकानात के सामने पड़े रहने पर बेतहाशा चालानात किए जा रहे हैं। मजलिसी अरकान मुक़न्नना का कहना था कि ओहदेदार तो दफातर में बैठे रहते हैं, अवाम का सामना हमें करना पड़ता है और अवाम बेतहाशा चालानात से परेशान और बरहम हैं। मजलिसी अरकान मुक़न्नना ने चालानात को ख़त्म करने का मुतालबा किया। TRS के कॉरपोरेटर्स ने भी इन्फोर्समेंट शोबे की तरफ से बेतहाशा चालानात का एतराफ़ किया है और इस पर नज़रसानी की दरख्वास्त की। अरकान मुक़न्नना और कॉरपोरेटर्स के मुतालबे पर मेयर बीर राम मोहन ने इन शिकायत के जायजे के लिए कमेटी कायम करने का ऐलान किया है। ये कोई माजिद हुसैन अकेले कारपोरेटर का नहीं था, बल्कि ये 150 कारपोरेटर्स की आवाज थी। जो लोग नहीं बोलना चाहते थे वो बात माजिद हुसैन के मुंह से बोलने लगा दिए। ये बड़ी खुशी की बात है। उन्होंने एक बात और एक अच्छी बोले कि ये पहली बॉडी ऐसी है जिसमें कारपोरेटर्स को अनफॉर्चुनेटली 1 रुपया भी सेपरेट बजट नहीं मिला। क्योंकि MLAs को मिलता है, MPs को मिलता है, वैसा मैं भी GHMC में सर्व किया हूं एज ए डिप्टी मेयर 2009 से 12 तक, जब भी हम लोग ने लोगों को कारपोरेटर्स को बजट दिया था। जैसा आप जानते हैं कि अगर फादर कने दौलत बहुत है, अगर बच्चे को पॉकेट मनी नहीं देंगे तो वो क्या करेगा। हमेशा बाप ये कहेगा मेरे पास दौलत है, तेरे को जब जो होना है बोल। ऐसा नहीं रहता, पर्सनल दोस्तों के बर्थडेज रहते। उसी तरह GHMC के अंदर जब कारपोरेटर गली में जाता है, उसको कोई काम कहते हैं तो इमीडिएट वो काम नहीं करा सकता। काम तो एग्जीक्यूट GHMC को करना है, ना कि कारपोरेटर को पर्सनल करना है। सिर्फ वो रिकमेंड कर सकता है। उसके लिए सेपरेट अगर बजट कर देंगे तो ये लास्ट ईयर में बेहतर रहेगा। मजलिसी कॉरपोरेशंस ने शहर में सफाई, नालों की तोसी, बहादुरपुरा फ्लाईओवर की तामीर में ताकीर और दूसरे मसाइल पर तवज्जो दिलाई। कॉरपोरेटर महमूद कादरी ने पुराने शहर में साफ सफाई ना होने पर बरहमी जाहिर की। इन्होंने स्टेडियम्स में कोचेस ना होने पर तवज्जो दिलाई है। सर मेरा कि मुगलपुरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, जो पिछले 20 और 25 साल से जब वो ग्राउंड था GHMC का, उसको अकबरुद्दीन अवैसी साहब की सरपरस्ती में कई GHMC के कोचेस वहाँ पर कई नौजवान लड़कों को ओल्ड सिटी से काबिल बनाए, जो नेशनल
गेम्स खेले और मेडल्स लेकर आए, गोल्ड मेडल्स लेकर आए जूनियर इंडिया की टीम में। सुनिए सर, बात सुनिए, हम आपकी बात पूरी समाप्त करते हैं, आप भी पूरी जरा सुनिए। आप जरा 2-4 मिनट ही दीजिए आप मेरे को, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। मैं आपसे कह रहा हूं, आज जितने कोचेस है, इतना बड़ा पुराने शहर का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है जिसमें वॉलीबॉल है, बैडमिंटन है, क्रिकेट, टेबल टेनिस, कैरम बोर्ड, स्केटिंग, जिम्नास्टिक, योगा, बॉक्सिंग, बास्केटबॉल, फुटबॉल, सिर्फ एक कोच है सर जीएचएमसी का वहां पर। कमिश्नर साहब आप सुनिए, एक कोच है जेम का जो बाफन्ना है सर, और जितने मैं नाम लिया हूं वहां पर एक कोच जीएचएमसी का मौजूद नहीं है। ये कहां का इंसाफ है सर, आप बताइए। आप, एक कोच मौजूद नहीं है हमारा पुराने शहर के अंदर। कॉर्पोरेटर नसरीन सुल्ताना ने अपने डिवीजन में नालों की सफाई और तोसी का मसला उठाया। उनका कहना था कि नालों की अदम सफाई से पानी मकानात में दाखिल हो रहा है। कॉर्पोरेटर एम.ए. गफ्फार ने बहादुरपुरा फ्लाईओवर की तामीर में हो रही ताखीर पर भी तवज्जो दिलाई। जोनल कमिश्नर्स को जो पावर्स दिए गए हैं 8-8 करोड़ रुपए के, ठीक है, आप इक्वल पावर दिए, बहुत खुशी की बात है, अच्छी बात है, डेवलपमेंट हर जगह होना चाहिए। मगर बात जैसा चार मीनार जोन 36 कारपोरेटर है चार मीनार जोन में, और बाद जगह 20 कारपोरेटर आते हैं, बाद जगह 25 आते हैं। ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हुआ साहब, जरा ये बताइए आप हमारे, या नहीं तो आप जो है कारपोरेटर वाइज उसमें बढ़ाइए अमाउंट, उस हिसाब से जब आप जस्टिस करना चाहें तो इक्वल जस्टिस करिए। ये इक्वल कैसा होता है, इक्वालिटी कैसा होती है साहब? 36 कारपोरेटर में भी 8 करोड़ रुपए महाना यूज करने के लिए दिए हैं, और दूसरे सल्कत में जहां पर 20 कारपोरेटर है, जहां पर 25 कारपोरेटर, उनको भी उतना अमाउंट होते हैं। नावाजबी बात है साहब। न्यू सिटी के बाद एरिया डेवलप एरिया, खैर वहां भी प्रॉब्लम्स है, मगर ज्यादा प्रॉब्लम साउथ जोन में है। इस चीज का ख्याल रखते हुए आप उसको जो है बजट में इंक्रीज करिए। हमारे जोनल कमिश्नर को आप ज्यादा अमाउंट बढ़ा के दिए तो मेहरबानी होगी। शुक्रिया। डिपार्टमेंट बना, इनको जिस दिन पोस्टिंग करे उस दिन डिपार्टमेंट बना। आप वो जियो की बात कर रहे हैं, ये एक आदमी के वास्ते जो है डिपार्टमेंट बनाते हैं आप। वो जो एक्ट के अंदर नहीं है, सो वो जो है कौन से दिन आपको मैं बोलता हूं कि ये जो है आपको जो जीएचएमसी एक्ट नहीं, ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आपको मार्च 2018 में इश्यू हुआ, और जिस दिन एक्ट वो जियो इश्यू हुआ उस दिन इनको पोस्टिंग दिए, तो इनके लिए क्रिएट कियागा, वो जबरदस्ती का क्रिएट करागा। जो एक्ट के अंदर नहीं है, जो एक्ट के अंदर नहीं है, वो एक्ट में नहीं है, तो जियो से आप नहीं कर सकते। और वो सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन जो रहता, तो सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन बोलते हैं रूल्स को, तो रूल्स जो है एक्ट को एक्सीड नहीं कर सकते, और कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जियो एक्ट को वो बाईपास नहीं कर सकता। तो ये टोटली इलीगल अनऑथराइज्ड जो है ये चीज क्रिएट की गई है। आप रिजोल्यूशन लेके डिसबैंड कीजिए और ये ऑफिसर को रिपैट्रिएट कीजिए, उसके बगैर हम जो है खामोश बैठने वाले नहीं है। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है और अब बढ़ते हैं दीगर खबरों की जानिब। साबिक मरकजी फाइनेंस व रुकने पार्लियामेंट पी चिदम्बरम ने कहा कि मुल्क की मईशत बिस्तर मर्ग पर है। हैदराबाद में एक खानगी कॉलेज के प्रोग्राम में शिरकत के मौके पर खिताब करते हुए इन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत के फैसलों से मईशत आईसीयू में है, लेकिन इसको तंदुरुस्त बनाने की कोशिश की जा रही है। इसके इलाज के बारे में कोई इक़दाम नहीं किए जा रहे। सिर्फ अच्छे दिन कहने से अच्छे दिन नहीं आएंगे और ना ही अवाम में विश्वास पैदा होगा, क्योंकि मुल्क की मईशत के सुधार के लिए कोई इलाज नहीं किया जा रहा। मईशत के सुधार के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह की ज़रूरत है। इन्होंने कहा कि मरकजी बजट के एदाद शुमार बिल्कुल झूठे हैं। 160 मिनट की बजट के खिताब से खुद वज़ीर फाइनेंस भी थक गई, लेकिन जो बड़ी गलतियां की हैं इसका तस्करा तक नहीं किया गया और ना ही इसको सुधारने की कोई बात कही गई है। रियासती हुकूमत ने रुकन असम्बली एलबी नगर देवी रेड्डी सुधीर रेड्डी को बहैसियत से सदर नशीन मूसी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन मुकर्रर किया गया है। वज़ीर आला ने इन अहकामात से मुताल्लिक़ फाइल पर दस्तखत किए हैं। ये ओहदा काबिनी दर्जे का हामिल होगा। इस ओहदे पर सुधीर रेड्डी 3 साला मियाद के लिए बहैसियत सदर नशीन बरकरार रहेंगे। उर्दू रियासत तेलंगाना की दूसरी सरकारी ज़बान है, लेकिन सबसे ज़्यादा उर्दूदां तबके की आबादी वाले शहर हैदराबाद के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस में उर्दू मीडियम के ज़रिए मुख्तलिफ मज़ामीन पढ़ाने वाले लेक्चरर्स को हुकूमत ने बर्खास्त कर दिया। उर्दू मीडियम से डिग्री कोर्सेज करने वाले तुलबा व तालिबात और चंद असातिज़ा ने दारुस्सलाम पहुँच कर सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी से मुलाकात की
और उन्हें बग़ैर निसाबी किताबें, बग़ैर किसी लेक्चरर्स के तालीम के हुसूल में हो रही दुश्वारियों से वाकिफ करवाया। सदर मजलिस ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी व कमिश्नर कॉलेज एजुकेशन नवीन मित्तल से टेलीफोन पर राबिता किया और शहर के डिग्री कॉलेजेस से उर्दू को निकाल दिए जाने की शिकायतों से वाकिफ करवाया। नवीन मित्तल ने सदर मजलिस को यकीन दिलाया कि वो इन शिकायत के हल के लिए आजिलाना कार्रवाई करेंगे। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज चंचलगुड़ा, फलकनुमा, हुसैनी आलम, गोलकुंडा, इंदिरा प्रियदर्शनी के बेशुमार तलबा व तालिबात ने बताया कि हुकूमत की जानिब से उन्हें उर्दू में कोई निसाबी किताबें दस्तियाब नहीं हैं। इन कॉलेजेस में उर्दू मीडियम 1448 तलबा व तालिबात तालीम हासिल कर रहे हैं। उर्दू मीडियम के लिए कोई मुस्तकिल लेक्चरर नहीं है। गेस्ट फैकल्टी के जरिए खिदमात हासिल की जा रही हैं। पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तारीख के मज़ामीन गेस्ट लेक्चरर्स पढ़ाया करते थे, अब उनकी खिदमात भी ख़त्म कर दी गई हैं। उर्दू मीडियम के बेशतर तलबा अरबी को सेकंड लैंग्वेज के तौर पर पढ़ते हैं। अरबी लेक्चरर्स का भी नज़्म नहीं है। ऐसा मालूम हो रहा है कि हुकूमत उर्दू मीडियम तालीम को ही ख़त्म करना चाहती है। इन तलबा ने तवक्को ज़ाहिर की है कि बैरिस्टर अवीसी की मदाखलत और नुमाइंदगी के ज़रिए इनके मसाइल का हल बरामद होगा। हमारे पास ना उर्दू मीडियम के लेक्चरर्स निकाल दिए गए हैं, ये कमिश्नर की तरफ से ऑर्डर आया बोले, और हम लोग की तरफ कुछ एक्शन ले रहे नहीं। हम लोग तो फाइनल ईयर के है, चलो भाई हम लोग का हो जाता, अब नेक्स्ट फर्स्ट ईयर का क्या होगा। अब रिजल्ट आया, अब सेमेस्टर है, अब नेक्स्ट सेमेस्टर में तो और लॉस होता ना उन लोग का। तो ऐसा तो दिन ओवैसी साहब से गुजारिश की जाती है कि हम लोग को जल्द से जल्द लेक्चर्स प्रोवाइड करें। उर्दू मीडियम के साथ जो इस महकमे तालीम के जो कमिश्नर साहब हैं उनकी तरफ से एक ऑर्डर जारी किया गया है कि जो लेक्चरर्स है उर्दू मीडियम के लिए, ख़ास तौर पर बीए के लिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, उसको गेस्ट जो फैकल्टीज़ थे उसको निकाल दिया गया है। और ये ख़दशा है कि आइंदा साल से किसी भी उर्दू मीडियम में एडमिशन बच्चों को नहीं दिया जाएगा। ये सबसे अहम तरीन मसला है। एक तरफ हुकूमत उर्दू के साथ दिलचस्पी का मुजाहरा करती है, उर्दू को दूसरी रियासती सतह पर ज़ुबान का दर्जा दिया जा रहा है, लेकिन दूसरी जानिब कमिश्नर साहब की ये उर्दू से नाइंसाफ़ी हो रही है। इसलिए हमने आज नखीब मिल्लत से नुमाइंदगी की है। शहरियत तरमीमी कानून NRC NPR के खिलाफ सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी की सदारत में यूनाइटेड मुस्लिम एक्शन कमेटी के ज़ेरे एहतमाम इतवार 9 फरवरी को शाम 6 ता 10 बजे शब करनूल के एग्जीबिशन ग्राउंड पर एहतजाजी जलसा मुनक्किद होगा। इस जलसे की तैयारियों का जायजा लेने हैदराबाद से सदर यूनाइटेड मुस्लिम फोरम मौलाना रहीमुद्दीन अंसारी, जनरल सेक्रेटरी मौलाना सैयद मुनीरुद्दीन मुख्तार पर मुश्तमिल एक वफ़द ने करनूल का दौरा किया। करनूल के उलमा इकराम व अहम शख्सियतों से मुलाकात की। करनूल के इस जलसे आम को हैदराबाद के उलमा इकराम, जिनमें काबिल ज़िक्र मौलाना हाफिज़ पीर शब्बीर, मौलाना हुसामुद्दीन सानी जाफ़र पाशा, मौलाना रहीमुद्दीन अंसारी, मौलाना मसूद हुसैन मुश्तहिदी, मौलाना निसार हुसैन हैदर आगा, मौलाना औलिया हुसैनी मुर्तज़ा पाशा, मौलाना मुनीरुद्दीन मुख्तार, मौलाना अहमद अल हुसैनी सैयद कादरी, मौलाना शब पाशा, मौलाना आल मुस्तफ़ा अली पाशा, यूसुफ हामिदी शामिल हैं और ये खिताब भी करेंगे। इस जलसे के कन्वीनर मंसूर पाशा हैं। इलाक़े रायलसीमा के उलमा कराम भी जलसे को मुखातिब करेंगे। सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी का खुसूसी खिताब होगा। शेखुल जामिया निज़ामिया मौलाना मुफ्ती खलील अहमद ने कहा है कि ख़वातीन सालेह मुआशरे की तस्कील में अहम किरदार अदा करती हैं। वो ईदगाह मीरालम पर 2 रोज़ा कुल हिंद ख़वातीन कॉन्फ्रेंस में इफ्तिताही खुतबा दे रहे थे। जामियातुल मोमिनात ने इसका एहतमाम किया। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, सदर नशीन अक़लियती कमीशन मोहम्मद कमरुद्दीन, मुफ्ती मस्तान अली क़ादरी, अनीस मिल्लत मौलाना इरफानुल्लाह नूरी, हाफिज मोहम्मद मुजफ्फर हुसैन खान और दीगर उलमा इकराम, स्कॉलर्स और मुल्क के मुख्तलिफ इलाक़ों से आई खातून स्कॉलर्स ने भी खिताब किया। इस कॉन्फ्रेंस में 6 मुख्तलिफ मौज़ूआती इजलास रखे गए। कायदे मजलिस मुक़न्नना पार्टी अकबरुद्दीन अवीसी ने असरा हॉस्पिटल में डायलिसिस के नए वार्ड का मुआयना किया। इस नए वार्ड में असरी मशीनरी लगाई गई हैं। इन्होंने मरीजों को पहुंचाई जाने वाली सहूलतों और मौसर तिब्बी खिदमात के हवाले से डॉक्टर से मुशावरत की। असरा हॉस्पिटल शालीबंडा के डायलिसिस वार्ड को बड़ी मकबूलियत हासिल है, जहाँ असरी तिब्बी सहूलतों के साथ निस्बतन कम खर्च पर डायलिसिस की खिदमात दस्तियाब हैं। नए यूनिट का रस्मी इफ्तिताह सदर व रुकन पार्लियामेंट
बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के हाथों अंजाम दिया जाएगा। रस्मी इफ्तिताह से कबल ही इस यूनिट को आवाम के लिए खोल दिया गया है। शहर के बॉक्सर्स ने दिल्ली में मुनक्किदा ओपन नेशनल चैंपियनशिप में 3 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल हासिल किया है। इन बॉक्सर्स ने अपने कोच के साथ दारुसलाम पहुंचकर सदर मजलिस व रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी से मुलाकात की और कौमी चैंपियनशिप में कामयाबी से उन्हें वाकिफ करवाया। सदर मजलिस ने इन खिलाड़ियों को मुबारकबाद पेश की और उनसे नेक तमन्नाओं का इजहार किया। सनशाइन स्पोर्ट्स एंड गेम्स एसोसिएशन सुल्तान शाही से ताल्लुक़ रखने वाले चैंपियनशिप कामयाब खिलाड़ी मोहम्मद रफीउद्दीन, मोहम्मद अयान, मोहम्मद फैजान, याकूब अनवर के साथ उनके कोच मोहम्मद मिसबाहुद्दीन भी मौजूद थे। आरटीसी चौराहे के पास कार सर्विस शोरूम में आग लगने का वाकया पेश आया। सुबह के अव्वलीन सातों में हुए इस वाकये में किसी भी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ, ताहम भारी माली नुकसान का खदशा जाहिर किया गया है। आसपास के शोरूम्स और एक गिरजाघर को भी मामूली नुकसान पहुंचा है। मुकामी अवाम की इत्तला पर फायर ब्रिगेड ने मुकामी वाकया पहुंचकर आग पर काबू पाया। रात के औकात में आग के बुलंद शोलों और फिर धुएं की वजह से इलाके में सनसनी देखी गई। फर्जी दस्तावेजात के जरिए बैंक्स को चूना लगाने वाले 6 अफराद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि फन्नी चौधरी, स्वरूप नाथ, श्रीनिवास राव, हरीश, वेणुगोपाल और शेखर राव हादसों में हलाक हो चुके आईटी मुलाजिमीन के फर्जी शिनाख्ती कार्ड और दस्तावेजात तैयार करके कर्ज लिया करते थे। बैंक्स की तरफ से शिकायत मिलने पर पुलिस ने तमाम 6 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमीन के कब्जे से 100 फर्जी शिनाख्ती कार्ड, 6 मोबाइल फोन्स और गाड़ी को जब्त किया गया है। रोड ट्रांसपोर्ट के हुक्काम ने हफ्ते को शमशाबाद हुदूद में कवायद की खिलाफ वर्जी के तहत चलाई जाने वाली खानगी स्कूल बसों के खिलाफ क्रैकडाउन किया। ओहदेदारों ने 8 बसों को जब्त कर लिया। बताया गया है कि रंगारेड्डी जिले के डीटीसी प्रवीण राव की निगरानी में ये मुहिम अंजाम दी गई। रोड ट्रांसपोर्ट महकमे ने कवायद की खिलाफ वर्जी के तहत बसें चलाने पर सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया है। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। शहरियत कानून, एनपीआर और एनआरसी के खिलाफ जीएचएमसी जनरल बॉडी इजलास में करारदाद मंजूर। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की तहरीक का असर। जीएचएमसी बजट 6,977 करोड़ रुपए मंजूर। 1,593 करोड़ डबल बेडरूम के लिए मुख्तस। इन्फोर्समेंट चालानात पर मजलिस की बरहमी। सफाई, नालों की तोसी और कॉर्पोरेटर्स को फंड की इजराई का किया मुतालबा। मुल्क की मईशियत बिस्तर मर्ग पर, इलाज की कोई फिक्र नहीं। मोदी में इंसानी हमदर्दी का फुकदान। रियासत के नुकसानात पर केसीआर खामोश क्यों, चिदम्बरम का सवाल। और फर्जी दस्तावेजात के जरिए बैंक्स को चूना लगाने वाली 6 रुकनी टोली गिरफ्तार। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।